anniversary of Bharat Ratna, Dr. Bhim Rao Ramji Ambedkar. On behalf of the district administration, I extend my heartfelt greetings to every one of you on the occasion of Ambedkar Jayanti. Baba Saheb Ambedkar was not just the principal architect of Indian Constitution. He was a visionary, a tall leader, a relentless crusader for social justice, and a towering intellectual who reshaped the destiny of our nation. He envisioned an India where democracy was not merely a political structure but a way of life built on the foundational pillars of liberty, equality, and fraternity. His life is a testament to the power of education and unyielding determination. Rising from the deepest margins of the society, he broke through the barriers of discrimination to draft the current structure of Indian Constitution. He taught us that true freedom is impossible without social and economic equality. For us here in Ladakh, Dr. Ambedkar's vision holds immense and continuous relevance. The Constitution he gifted us is the very framework that protects our unique cultural identity, our environment, and our democratic rights. As we navigate the path of progress and development of the Union Territory of Ladakh, we must keep his teachings as our guiding light. These are the values Baba Ambedkar championed. When we talk about development in Leh today, whether it is bringing tap water to the remotest villages through the JJM, ensuring quality education, or empowering our local entrepreneurs, we are fundamentally working towards Dr. Baba Saheb Ambedkar's vision. The district administration of Leh remains deeply committed to translating Baba Saheb's ideal into ground reality. Our focus is clear: ensuring that government schemes and basic amenities reach the last mile from the busy markets of Leh town to the borders of Changtang. Building robust educational infrastructure because, as Dr. Baba Ambedkar famously said, cultivation of mind should be the ultimate aim of human existence. Upholding the rule of law and ensuring that every citizen, regardless of their background, is treated with absolute dignity and fairness. My dear friends and students, honoring Dr. Ambedkar merely with garlands and speeches for one day is not enough. The truest tribute we can pay to Baba Saheb is to internalize his teachings and constitutional values in our daily lives. We must pledge to eradicate all forms of inequality, promote scientific temper, and stand together as a united community dedicated to the progress of Ladakh. बाबा साहब अम्बेडकर का जो विज़न था वो खाली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी तक सीमित नहीं रहता है. जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज जिस शेप में हम देखते हैं उसको हमें एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह देखने की ज़रूरत है. मैं यहाँ से जितने भी टीचर्स आए हैं, जितने भी स्कूलों से, उन सब से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कम से कम प्रीएम्बल को सारे स्कूल्स में, सारी क्लासेस में, छोटी क्लासेस से स्टार्ट करके उसके एक एक वर्ड को बच्चों को सिखाएं. जैसे कभी कभी हम जब इक्वलिटी को हिंदी या दूसरी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करते हैं तो वो समानता या बराबरी आता है, लेकिन इक्वलिटी का असली मतलब समानता या बराबरी नहीं, बट जो अगर हमारी सोसाइटी में एक पर्सन ऐसा है जो डिसएडवांटेज रहा है तो हमें ज़रूरत है कि हम उस एक आदमी को पहले उसके बराबर ले जाकर खड़ा करें जो कि प्रिविलेज्ड है. उसके बाद ही हम इक्वलिटी की एक विज़न को हम एनविजन कर सकते हैं. मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोशिश करूंगा कि हर मंथ एक दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को हर स्कूल में पढ़ाएं और उसके बाद हम कोशिश करें कि हम हर बच्चे को प्रीएम्बल के हर एक वर्ड का, कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक कंसेप्ट को उन तक क्लियरली पहुंचा सके. मैं कोशिश करूंगा, मैं एक कुछ स्कीम सोचूंगा कि जिसमें हम हर स्कूल में जो भी हम अपने बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उसका एक छोटा सा कुछ इंटरेक्टिव क्विज टाइप ले, और जो बच्चे उसमें अच्छा एक्सेल करते हैं या जो स्कूल उसमें अच्छा एक्सेल करता है उसको हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिवॉर्ड करेंगे. ऑन अ पर्सनल नोट, मैंने अभी लेमडॉन स्कूल की जो बच्ची थी जिसने भोटी में इतना अच्छा स्पीच दिया, तो ये मेरा काफ़ी दिनों से सोचना था कि मैं भी भोटी सीखूं, बट किन्हीं कारणों से मैं कभी भोटी सीख नहीं पाया. तो मैं जिगमत को अब कहूँगा कि वो मेरे लिए अरेंज करें कि मैं 3 महीने में भोटी सीख पाऊँ, और लाखरुख साहब चाहे मेरा 3 महीने बाद कुछ टेस्ट लेके देखें कि हम कुछ सीख पाए या नहीं सीख पाए.
तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आज हम जितने भी बच्चों ने बोला, जितने भी हमारे एसएसपी साहब ने बोला, लाखरुख साहब ने बोला, उन सब चीज़ों को जितने भी स्कूल के टीचर्स हैं वो आगे ले जाएं अपने स्कूल्स में, अपनी क्लासेस में उसको जाके बताएं बच्चों को। ये आपका काम कल के लिए ही है, जितने भी यहाँ टीचर्स हैं, कि कल जाके इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और डिग्निटी के बारे में बच्चों को बताएं। जितने भी कंसेप्ट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, सेक्युलरिज्म हो गया, उसको हम एक एक बच्चे तक पहुंचाएं। छोटे बच्चों को उनकी भाषा में समझाएं, 11th-12th के बच्चों को उनकी भाषा में समझाएं। तो ये आप सब कोशिश करें और हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोशिश करेंगे कि हम हर बच्चे को कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सिखा पाएँ। तो जी, ऐसा विशनरी को याद कर रहे हैं जिन्होंने इंडिया को एक नई सोच दी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। बाबा साहब का जीवन एक पावरफुल रिमाइंडर है कि सर्कमस्टांसेस चाहे कितनी भी टफ हो, डिटर्मिनेशन और एजुकेशन इंसान को कहाँ से कहाँ तक ले जा सकते हैं। उन्होंने सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बदली बल्कि पूरे देश का फ्यूचर शेप किया थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो आज भी हमें इक्वालिटी, जस्टिस और डिग्निटी का रास्ता दिखाता जाए। बाबा साहब के लिए एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, वो एक टूल था, एक स्ट्रेंथ थी, एक ऐसी चीज़ जो इंसान को खुद के लिए खड़ा होने की हिम्मत देती है। आज के टाइम में इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन समझ और सोच बनाना वही असली एजुकेशन है। जब वो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने सिर्फ अधिकारों पर ही जोर नहीं दिया, बल्कि एक ऐसा फ्रेमवर्क दिया जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी इक्वली इम्पोर्टेंट हो। उनका फोकस था कि देश सिर्फ लॉ से नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से चले। उन्होंने इंश्योर किया कि हर इंसान को डिग्निटी मिले, हर आवाज़ को सुना जाए और सिस्टम सबके लिए काम करे, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो, सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हो या स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बनाना हो। आज के यूथ के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि राइट्स और ड्यूटीज़ एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं। अगर हम अपने राइट्स जानते हैं तो हमें अपनी जिम्मेदारियां भी उतनी ही ईमानदारी से निभानी चाहिए। दोस्तों, बाबा साहब का सफ़र आसान नहीं था। उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, बैरियर्स फेस किए, लेकिन कभी रुके नहीं। उनका स्ट्रगल सिर्फ पर्सनल नहीं था, वो एक पूरी जेनरेशन के लिए था, एक नए इंडिया के लिए था। आज का दिन हमें सिर्फ उन्हें याद करने के लिए नहीं बल्कि उनकी जर्नी को समझने के लिए है, और ये रियलाइज़ करने के लिए कि एक इंसान कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। आज हम उन्हें सिर्फ एक महान नेता के रूप में ही नहीं बल्कि एक महान इंसान के रूप में याद करें, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जस्टिस, डिग्निटी और इक्वालिटी के लिए डेडिकेट कर दी। यही उनके लिए सबसे बड़ा रेस्पेक्ट होगी। थैंक यू। जय हिंद।